प्रीमियर लीग में हो रही है गोल्स की बरसात। जहां सिटी ने लास्ट वीक खाए 5, वहीं यूनाइटेड ने खाए 6 और लिवरपूल ने खाए 7। फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पोर्ट्स मार्वल एंड दिस इज आवर कवरेज ऑफ गेम वीक 4, जहां पे हम एनालिसिस करते हैं इस गेम वीक के मैचेस का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वीक के सबसे बड़े उलटफेर से, जो कि था एस्टन विला और लिवरपूल के बीच का मैच। मैं स्ट्रेट वे इनवाइट करना चाहूंगा अर्श को टू द डिस्कशन और उनके फीडबैक लेना चाहूंगा इस गेम के ऊपर। हाय रजत। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग गेम था एज अ लिवरपूल फैन। और उम्मीद नहीं थी कि ये रिजल्ट होगा। अगर लिवरपूल 7-2 जीतता तो शायद और खुशी मिलती, लेकिन एकदम उम्मीदों से विपरीत गेम था। देखिए, इस गेम में if everything you can say a bad can happen in a game, it happened in this game. Right from, if I start with the goalkeeper, that Alisson was not well and he got injured before this game. तो उनका ना होना वो आपको पहले चौथे मिनट में दिख गया था, जब एड्रियन ने मिस्टेक की और जो गोमेज को पास दे रहे थे उससे सीधा गोल हो गया। But I thought that when that thing happened, it at least they should not have fallen apart. And Vaibhav, do you agree कि एकदम से उस होने के बाद लिवरपूल could have bounced back? Thank you, Harsh, and thank you, Rajat. So, Harsh, I honestly feel that as a setback, Liverpool, have had players like Van Dijk making mistakes in the previous games. Robertson made an error against Arsenal, and when we saw Alisson in the previous seasons also making mistakes, but these are big players and they come back, they bounce back. वो expectation जो था कि Adrian would come back from that and the team would also gel as a team. But then after that, I think the team fell apart, and credit should be given to Villa. The way they attacked and exposed the high line Liverpool played. तो वो जो एक ग्रिलिश वॉटकिंस का जो एक कॉम्बिनेशन था, उसको लाइन को ब्रेक करने में वो कॉन्स्टेंटली ब्रेक करते रहे. और अगर आप देखेंगे इस गेम में, as you said, rightly said, so everything bad that could have happened had that happened, right? So there were blunders, there were deflections, there were Liverpool players playing very bad. Gomez was substituted during the in the 60th minute of the game. So I think a combination of Liverpool players having a really bad day, Aston Villa playing really good football, exposing the high line, bad luck, blunders, so all put together. But 7-2 is an overwhelming result for any team. So मतलब मैं ये बोल सकता हूँ that हाई लाइन तो देखिए, जितने टॉप टीम्स हैं एवरीबॉडी कीप्स हाई लाइन, लेकिन हाई लाइन तभी होता है when you press high. And in this game we saw Liverpool were not pressing high. In fact, Naby Keita had a forgettable game. जो रोल नेबी केटा को करना था कि वो आगे प्रेसिंग करनी थी, और उस गेम में एस्टन विला को बहुत स्पेस मिला. And more than the problem of high line, we had a problem of players positioning also. कि जिस टाइप की positions players ने ली, and they see the difference between Liverpool, I would say, falling apart in previous games and this game is क्योंकि they never thought that Aston Villa can score 6 or 7 goals against them, and that went again. And being champions, I think this is the first time that has happened that a reigning champion would have conceded 7 goals in a game. Isn't it unusual? Absolutely. And Vaibhav, I think there are a lot of records Absolutely. that were broken in this game. Absolutely. So after 63, this is the first time Liverpool conceded 7 goals. The biggest defeat that a reigning Premier League champion has ever, faced. Also, I think जिस तरह से हम तारीफ कर रहे हैं और बात कर रहे हैं एस्टन विला की, and they have been, by the way, they have a 100% record in this season so far. शायद लिवरपूल ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एस्टन विला विल प्ले सच अ ग्रेट गेम दैट डे, बिकॉज वो हो सकता है कि सब कुछ जेल कर गया उस दिन, और एंड इट वाज नॉट अ वन ऑफ इंसिडेंट. दे हैव बीन प्लेइंग रियली गुड फुटबॉल against Fulham away from home. They were superb, and the first game also, I don't remember the opponent, but they were really composed, and the same thing that we saw yesterday. But I think इसमें थोड़ा सा एक लिवरपूल के लिए अगर कुछ एक लाइट एट द एंड ऑफ टनल है, अगर एक सिल्वर लाइनिंग है, तो वो ये है कि इस गेम में ना एलिसन खेल रहे थे, ना हेंडरसन खेल रहे थे, ना ही हमारे इस सीजन के जो हमारे स्टार साइनिंग थियागो, ना वो खेल रहे थे. वी ऑल्सो डिड नॉट हैव माटिप, द डिफेंडर, द सेंटर बैक, एंड ऑल्सो वी वर मिसिंग माने, right? Although Jota had a decent game and Salah performed the best that he could, so we were missing a lot of players. Liverpool were missing a lot of players.
देखिए वैभव, चाहे हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे, आप कह रहे हैं लिवरपूल के मेजर प्लेयर्स मिसिंग थे, लेकिन यू कैन नॉट इवन जस्टिफाई द स्कोर लाइन. एंड इवन आई वुड लाइक टू ब्रिंग इन रजत. Rajat, can United justify losing 6-1 to Tottenham Hotspur? Jose Mourinho taking a sweet revenge. देखिए मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था दो लिवरपूल फैंस को एक 2-7 की लॉस को डिस्कस करते हुए, सुनते हुए, और अलग अलग तरीके के जो आपने बातें बताई कि ये नहीं खेल रहे थे, वो नहीं खेल रहे थे. देखिए उस दिन जो होता है उसके लिए जो टीम जीतती है उसको क्रेडिट देना अनिवार्य है. मेरे हिसाब से एस्टन विला बहुत अच्छा खेला एंड दे डिजर्व टू विन. कमिंग टू यूनाइटेड, आई थिंक दे प्लेड इवन मच वर्स देन लिवरपूल. लिवरपूल के परफॉर्मेंस में यू डिड नॉट सी देम गिविंग अप, बट यूनाइटेड्स परफॉर्मेंस वाज स्पाइनलेस. आप देखिए पहले 30 सेकंड्स के पेनल्टी लेने के बाद जब आप आगे निकल जाते हैं एंड विद इन 8 मिनट्स यू हैव कंसीडर्ड 2 गोल्स, वो भी आपकी शैम्बॉलिक डिफेंडिंग हैरी मैग्वायर, आपके मार्की साइनिंग लास्ट ईयर के, ही मेक्स 3 मिस्टेक्स इन 5 seconds एंड वी हैव स्पेंट 80 million फॉर दिस डिफेंडर लास्ट ईयर. सो यू नो दैट्स नॉट अलाउड एंड दैट्स नॉट जस्टिफाइड. उसके बाद आप गेम के अंदर आएँ तो एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था गेम के अंदर जब एरिक लामेला का, आप उनकी जो इंटेग्रिटी या फिर आप समझे जो स्पोर्ट्समैनशिप है उनको क्वेश्चन कर सकते हैं. एंड मेरे हिसाब से उस मोमेंट पे या तो दोनों फुटबॉलर्स को येलो या दोनों को रेड मिलना चाहिए था. सो दैट वाज सम बिट ऑफ अनजस्टिस व्हिच हैपेंड टू यूनाइटेड, बट दे हैव बीन ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ वार सो मेनी टाइम्स. तो मार्शियल वाज सीन हैंगिंग अराउंड द कॉर्नर लाइन की, उनको शायद वार इस बार बचा ले, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. और उस पेनल्टी के बाद से तो बिल्कुल जैसे मैंने कहा स्पाइनलेस परफॉर्मेंस था. कहीं पे हमने मैच में दोबारा आने की कोशिश ही नहीं की. तीसरा गोल हो गया, चौथा गोल हो गया. जिस तरीके से हमने सेटअप किया था, आई थिंक वी वर वेरी ओपन. टॉटनहम इजीली फ्लैंक से हमारे जो विंग बैक हैं उनको ओवरटेक करके सर्कल में घुस रहा था. लूक शॉ तो आई डोंट नो, मतलब ही हैज बीन ऑलवेज सीन विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट लूक शॉ पूरे मैच में क्या कर रहे थे? आई थिंक द ओनली थिंग आई रिमेंबर, इतना गजब टैकल था वो, इतना दूर से, मतलब the only thing, that's what I'm saying, the only thing I remember from him is during the match is the tackle he made, which actually deserved a red card. It was a red card tackle. It had no intention for the ball whatsoever. So देखिए अब ट्रांसफर मार्केट में काफ़ी बातें चल रही हैं, बट अगर आपने एड वुडवर्ड को कल देखा हो 80th मिनट में वो देखे गए अपने फ़ोन से कुछ टेक्स्ट करते हुए, तो आई एम जस्ट होपिंग कि उन्होंने किसी सेंटर बैक के लिए ज़रूर डिमांड करी हो उस टाइम पे, और जो भी टीम कितने भी पैसे मांग रही हो एक सेंटर बैक ज़रूर हायर किया हो, बिकॉज हैरी मैग्वायर एंड एरिक बाई इज़ नॉट द सोल्यूशन. I think Victor Lindelof might have done a lot better in yesterday's match. एरिक बाई आउट ऑफ सॉर्ट लग रहे थे. हैरी मैग्वायर तो लग रहा है अभी तक ग्रीस में ही है, वो वहाँ से वापस ही नहीं आ पाए हैं. तो आई थिंक ही नीड्स टू सॉर्ट हिज हेड आउट एंड सिट आउट फॉर अ फ्यू गेम्स. एंड इफ योर कैप्टन इज इन दैट सॉर्ट ऑफ माइंडसेट, आई डोंट नो हाउ द टीम हु विल लीड द टीम. तो एक लीडरशिप इशू बन गया इस टाइम पे, क्योंकि आपने एक ऐसे प्लेयर को कैप्टन रख रखा है जो जिसकी अभी खुद ही टीम में जगह समझ में नहीं आ रही है. तो उसके अलावा आप देखें सेकेंड हाफ की शुरुआत में सॉल्जर ने अपने बेस्ट प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस को विड्रॉ कर लिया, तो वहीं से दिखाई दे गया था कि डैमेज लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं. इस मैच में वापस आने का तो उन्होंने मान ही लिया था कि कोई चांस ही नहीं है. तो ऑल इन ऑल आप देखें, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था यूनाइटेड इतनी बुरी तरीके से सरेंडर कर देगा, बट जोजे मोरिनियो ने जो एंजॉय किया होगा उस वक्त अपने फॉर्मर क्लब पे वापस आके उसको इतनी बुरी हार देते हुए, और जो पार्टी किया होगा उन्होंने कल रात, तो इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं आप लोग. मेरा बस यही मानना है कि आज फाइनली ट्रांसफर डेडलाइन है, तो वी विल मेक सम कॉन्शियस एफर्ट टू साइन अ सेंटर बैक. देखते हैं कभी कोई बात हो, मतलब कोई क्लोज हो पाता है नहीं. और व्हाट वी आर हियरिंग इज दैट कवानी को हम लोगों ने साइन कर लिया और एलेक्स टेलेस को लेफ्ट बैक के लिए हमने साइन किया है. आई थिंक सेंटर बैक इज, इफ वी डू नॉट मैनेज टू साइन एनी सेंटर बैक, देन इट विल हॉन्ट अस थ्रू आउट दिस सीजन. So yeah, Rajat, I have a question. Just a thought that I had in my mind while I was following the game. और हम पिछले 2-3 हफ्तों से बात करते हैं, जब भी हम प्रीमियर लीग का विश्लेषण करते हैं, that we speak about Maguire not performing, we speak about Bailly not performing, Lindelof not performing, Luke Shaw not performing. Pogba was also not in the best of his forms yesterday, and I think Van der Beek को start करने का time आ गया है, but that's my own opinion. But do you think इसमें Ole Gunnar Solskjaer को कहीं पर responsible बनाना चाहिए for all the marquee players, all the best players that you could have gathered together, assembled, not performing to their optimum levels? What do you think is a major reason haunting these players? ठीक है, थैंक्स फॉर पॉइंटिंग आउट वैभव पॉग्बा के बारे में और वैन डर बीक को स्टार्ट ना कराने के मामले में, और स्पेशली मार्की प्लेयर्स के परफॉर्मेंस जो नहीं आ पा रहा है. तो आई थिंक सोल्सजायर अभी तक सेफ रहे हैं फैंस के इमेज में, क्योंकि फैंस हैव बीन थिंकिंग कि क्लब से सपोर्ट नहीं मिल रहा है. बट येस, दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस
अगर आप कल का सॉल्जर का कॉन्फ्रेंस सुने जो बाद में उन्होंने किया मैच के बाद, ही हैज टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सच अ शो एंड ही हैज ब्लेम्ड हिमसेल्फ आल्सो। एंड आई थिंक एक कोच का एक काम रहता है कि सब स्टैंडर्ड प्लेयर से भी अच्छा प्रदर्शन करवाना, और इसके लिए सॉल्जर का क्रिटिसिज्म एकदम जायज़। वो बिल्कुल भी वो जो जैसे मैंने बोला स्पाइनलेस परफॉर्मेंस था, अगर आपको एक रेड कार्ड मिल जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप गेम छोड़ देते हैं। तो वहीं से मैनेजर का जो आप देखते हैं मेन रोल शुरू होता है, और वो उन्होंने कल बिल्कुल भी नहीं निभाया। वो खुद ही एकदम हैरान परेशान से लग रहे थे उस रेड कार्ड के बाद, और उसके बाद जब टॉटनहम ने उसका फ़ायदा उठाया, 2 गोल लगातार एकदम हाफ टाइम से पहले 4 गोल दाग दिए, तो उसके बाद उनके पास कोई आंसर ही नहीं था। और दैट एज आई मेंशनड, उनके जो हाफ टाइम सब्स्टिट्यूशंस दे वर क्वेश्चनेबल, बिकॉज एज अ यूनाइटेड फैन आई डोंट वांट माय टीम टू स्टॉप प्लेइंग एज इफ दे वांट टू स्टॉप अदर्स टीम स्कोरिंग गोल्स। अगर आपके पास अटैकिंग पोटेंशियल है तो you should have gone for goals. So exactly as you said, I think Solskjaer is also to be blamed for yesterday's performance, not what he has been doing throughout there, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा काम भी किया है, so I will not deny that, but yeah, yesterday's performance I think Solskjaer had a big role to play. कि लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों एक साथ ऐसा स्लम, दोनों क्लब्स, दोनों ये जो टॉप क्लब्स हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि 6 गोल दोनों ने एक ही दिन में कंसीड किए हुए, so that's a kind of a record. The only silver lining I would say that it has come early in the season and there is a lot of time to bounce back. But Harsh, what I will want to say here is that Liverpool के लिए it could be a bad day at the office, but United के लिए this was a long time coming. तो मतलब आप दोनों परफॉर्मेंसेस को कंपेयर नहीं कर सकते। आई थिंक लिवरपूल विल बी मच बेटर द नेक्स्ट टाइम राउंड, बट यू कांट से द सेम अबाउट यूनाइटेड। I think Right. So I think the only solace that people can probably take from this, both United and Liverpool fans, that जो हमारे टाइटल कंटेंडर्स हैं, बाकी टीम्स भी जो हैं वो भी तो बहुत जबरदस्त फॉर्म में नहीं चल रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट सिटी, you know, has always been spoken about as the most preferred favorite of bookies this season. They had a game against Leeds, और वो Leeds के अगेंस्ट जो उनका गेम था, वहाँ पर again we saw City being exposed by Leeds, and Leeds actually playing a masterclass in the second half. If you saw the game in the second half, probably more than half of the game in the second half was played in the half of Manchester City. तो City को किसी टीम ने आउट नंबर किया हो in the number of passes and possession in a football game, that is a very rare occasion. Leeds actually had more number of passes, more number of touches, more possession than City in that game. And when we talk about Pep's style of play, you have Bielsa style of play that actually overpowered City. बिल्कुल सही कह रहे हैं, because ये हमने लिवरपूल के गेम में भी देखी क्या। I mean the brand of football which Leeds play, it is very very enjoyable to watch. And apart from the last 15 minutes, second half में 15 minutes में Man City had a lot of chances. They were throwing numbers forward. They could have had penalty also. If you see, Raheem Sterling was tackled, and it was I thought that was a penalty, which might have been missed. But that could have been harsh. That actually would have been harsh on Leeds. Leeds actually deserve at least 1 point in that game. मतलब आप ये देखिए, एक promoted club is playing against one of the best clubs in the entire world. एंड वो क्लब जो कि अपनी डिफेंसिव फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए एक 65 मिलियन का पेचेक साइन करता है, एंड जस्ट गेट्स अ प्लेयर फ्रॉम बेनफिका फॉर 65 मिलियन यूरोस. लीड्स मे बी प्रोबेबली स्पेंडिंग द एंटायर सम ऑफ 65 on 8 or 10 different players. That is the difference in levels we are talking about. But Bielsa overcomes that difference by his brand of play. That is what I think Leeds इस गेम में लिवरपूल के अगेंस्ट और बाकी जो उन्होंने 2 गेम्स और खेले हैं, उन्होंने दिखा दिया है, they are here to stay. They are not just also Rams. They are here to stay. And as a fan, also brand of football is very appealing. I think as a neutral viewer, I think Leeds का brand of football is much more appealing than any of the teams which we have seen come up through the championship in the last 3-4 years. So I am pretty positive about Leeds for this year. आई थिंक लास्ट सीजन तक, लास्ट गेम तक हम लोग बात कर रहे थे कि लेस्टर भी बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहा है, और एकदम से ऐसा रिजल्ट आना कि वेस्ट हैम से 3-0 हार जाना, और उस गेम में वेस्ट हैम बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम थी एंड दे डिड नॉट इवन हैव अ चांस. सो Webber, what is your take on this game? Why do you think West Ham won this game so comfortably? ऐसा आपको क्या लगा, क्या डिफरेंट किया वेस्ट हैम ने, लेस्टर क्या नहीं कर पाया?
मुझे याद है जब मैं स्कूल में होता था तो एक मैं कॉम्बिनेशन बनाता था कि इसने उसे हराया, उसने इसे हराया, इसका मतलब ये तो उसे हरा ही देगा। तो अगर उस हिसाब से आप देखें, लेस्टर ने सिटी को 5-2 से उनके घर में हराया, ठीक है, और लेस्टर अपने घर पे 3-0 से वेस्ट हैम से आती है। इसका मतलब वेस्ट हैम जाके सिटी को 8 गोल से हरा ही सकता है, पर ऐसा नहीं हो रहा है और ऐसा नहीं होने वाला है। दिस इज अ लीग ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड आई वाज अटरली शॉक्ड टू सी द परफॉर्मेंस ऑफ लेस्टर अगेंस्ट वेस्ट हैम। वेस्ट हैम को पीपल हैव बीन जोकिंग, बट सिंस द टाइम उनके जो कोच हैं, he has been sitting on the sidelines and actually वो कोविड पॉजिटिव जब से हुए हैं तो ही उनके जो असिस्टेंट कोच है वही वहां पर ग्राउंड में आते हैं। जब से वो घर बैठे हैं तब से जो है वेस्ट हैम हैव बीन प्लेइंग लाइक यू नो अ यूरोपियन टॉप यूरोपियन क्लब, और लोग कह रहे हैं शायद ये गुड लक साइन और ओमेन ही होगा कोई, बिकॉज वेस्ट हैम वर वेरी कंपोज्ड। वो लोग का एक ही गेम स्टाइल है, दे विल ऑलवेज हैव 25 to 35% possession in a game because Leicester also tries to pass between the midfield और वो बहुत से horizontal passes करते हैं लेस्टर की टीम, स्पेशली टेलेमांस। और अगर आप इस गेम में देखें, वेस्ट हैम वो कहता है 25-30-35% पोजेशन दो मुझे भाई, लेकिन जो मुझे आप चांस दोगे, जो मुझे आप स्पेस दोगे ना, उस स्पेस को मैं ऐसे यूटिलाइज करूंगा एंड आई स्कोर गोल्स। एंटोनियो डिड द सेम। बोवेन का गोल देखेंगे आप, फॉरलैंड्स का गोल देखेंगे आप, दे जस्ट यूटिलाइज द स्पेस गिवन बाय लेस्टर। और लेस्टर जिसमें हम बात करते हैं मैडिसन, वार्डी, वी टॉक अबाउट चेंगिस अंडर हैज बीन साइंड बाय देम एंड देन वी टॉक अबाउट हार्वी बार्न्स, तो फायर पावर है उनके अटैक में। But a team at home not even able to score or let's say even take a shot on goal, it was actually surprising for an outsider. So as you said, unpredictable league. Leicester losing at home to West Ham, and West Ham are, by the way, they're looking strong. West Ham are looking strong and they're here to stay, as I said. आपने एक बात कही है वैभव, आपने बात की है होम गेम की। देखिए इतने अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट, जैसे आप कह रहे हो कि एक दूसरे को हरा रहा है, दूसरा तीसरे को हरा रहा है, तीसरा वापस किसी को हरा रहा है, मतलब किसी को कुछ नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन what I strongly believe is because this is a cramped season wherein managers have not got that enough time to spend with their teams to work on those formations, to work on the fact that, and even if you see the fitness of players both mental and physical, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जिससे players struggle कर रहे हैं। एम्प्टी स्टेडियम में कोई प्लेयर्स मोटिवेशन शायद थोड़ा सा कम है। शायद जितने भी आपके लोग हैं जो इनको मोटिवेट करते हैं कि एक गोल हो गया तो उसके बाद एकदम से क्राउड का सन्नाटा हो जाना या इंटिमिडेशन हो जाना, वो यही मिसिंग है। तभी यहाँ पर हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं और कोई टीम किसी को भी हरा रही है, क्योंकि आप प्लेयर्स के अगर माइंडसेट से अंडरस्टैंड करिए, व्हेन यू डोंट हैव एनीबॉडी अराउंड यू, हाउ डज इट फील? इट फील्स प्रीटी होलो। एंड और ये क्राउड का ना होना और फैंस की वजह से मोटिवेशन, फैंस के ना होने की वजह से मोटिवेशन ना होना, ऐसा मुझे याद आ रहा है हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में डिस्कस किया था। एंड वी ऑल्सो सेड दैट दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस ईयर्स रिजल्ट, और वो आपके कहने के हिसाब से साफ दिखाई दे रहा है। देखिए अभी भी हम जो सोच रहे थे कि ये होम के ऊपर जो मैचेस हो रहे हैं उनका पैटर्न बदल जाएगा और लोग अपने होम ग्राउंड पर जीतना शुरू कर देंगे, वैसा इस बार भी देखने को नहीं मिला। मैं तो वैसे ही सोच रहा हूँ कि मैं प्रेडिक्शन क्या करूँ गेम वीक्स की, बिकॉज इट इज, आई मीन, कौन किसको हराए हमें कुछ नहीं पता लग रहा है इस समय। देयर इज नो स्ट्रॉन्ग गेम अपार्ट फ्रॉम एवर्टन। एवर्टन हैज लुक्ड, आई थिंक, absolutely classy the way they have played, and Weber, you were pretty impressed with Everton's game, and what was in that game, because I thought मैंने उस गेम में एक चीज जरूर नोटिस की थी कि जॉर्डन पिकफोर्ड ने जब 1-1 कर दिया था तो मुझे लग रहा था शायद वहां से वो ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन what did Everton do special in that? सो एवर्टन, आपने सही बोला, वो जो 1-1 तो पिकफोर्ड का ही गोल माना जाएगा, बिकॉज जिस तरह का ब्लंडर किया था, ये तो एक ब्लंडर्स वाला एक वीक था डिफेंडिंग और डिफेंडर्स और गोल कीपर्स के लिए। सो पिकफोर्ड अगेन, आई थिंक यू आल्सो स्पोक अबाउट दिस इन द प्रीवियस गेम वीक प्रीव्यू दैट पिकफोर्ड इज अ लायबिलिटी, एंड वो फिर से साबित हुआ। बट उसके बाद में एवर्टन ने कभी भी जो है, ये ऐसा नहीं हुआ दैट दे फेल फ्लैट। दे वर अटैकिंग, दे वर प्लेइंग देयर फुटबॉल, देयर स्टाइल ऑफ फुटबॉल दैट दे हैव sort of that has become consistent this season. और जो अगर इसमें आप एक गेम में ना बहुत ही एक अगर क्लोजली आप इसके अगर स्टैट्स को फॉलो करेंगे, ब्राइटन हैड मोर नंबर ऑफ शॉट्स, ब्राइटन हैड मोर पोजीशन देन एवर्टन, और जहां पर ये गेम हारे ब्राइटन, वो इंडिविजुअल एरर से हारे हैं। उन्होंने मिडफील्ड में 2 बार बॉल लूज किया
पहली बार इवोबी ने और दूसरी बार डुकूरे ने बॉल को लेफ्ट विंग से क्रॉस किया, और राइट विंग पे कौन खड़े थे? राइट विंग पे खड़े थे आपके कोलंबियन स्टार हामिस रोड्रिगेज। हामिस रोड्रिगेज हैड 2 गोल्स, वो एक्चुअली रेप्लिका थे एक दूसरे के, और उन्होंने अपने कोलंबियन फेलो के लिए जो एक क्रॉस करके जो एक गोल जो उन्हें करवाया था सेट प्ले से, येरी मिना। So they scored 3 goals after that. Brighton did score another goal at the end of this end of the match. Bissouma I think was the best player in the entire game that day for both the sides. I think Bissouma played a wonderful game, और वो गोल भी काफी एक शानदार गोल था. So but again 4-2 deserved victory Everton. Unpredictable week. हुआ था कि 2 कोलंबियंस ने मिलकर गोल किया, एक असिस्ट एंड फर्स्ट टाइम. That's right. This is the first time in the English Premier League. But unpredictable, हमने मैचेस के बारे में डिस्कस किया. Everton had a predictable victory. Also we had the London clubs having predictable days. So what did you make of the Arsenal game? You saw that, Ash? The Arsenal game was I would say a typical game which we discussed even last week. जैसे Arsenal की परफॉर्मेंस इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, but they did enough to win that game. और इस गेम में भी वही हुआ. देखिए, when we talk about Sheffield United, Sheffield came in this game, they lost 6 games in a row before this. So this was their 7th game. So Chris Wilder के पास ऑलरेडी वो बैंडविड्थ बहुत ही कम था कि वो क्या टीम खिलाएं, कैसे खिलाएं. और शुरुआत में बहुत रेजोल्यूट खेले शेफील्ड यूनाइटेड. 28 मिनट तक एक भी शॉट गोल में नहीं था इस गेम में. ऑबामेयांग ने पहली बार तो किया, लेकिन इस गेम में एक VAR मूवमेंट हुआ था, एक वार मूवमेंट हुआ था जिसमें David Luiz should have been red carded because of the foul. उन्होंने ओलिवर बुर्की को गोल स्कोर करने से रोका था, बट वार ने उसको रूल आउट किया. वो फाउल नहीं था. अगर वो चीज़ होता तो इस गेम का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाता. सेकेंड हाफ के भी मिड तक इसमें कोई गोल नहीं हुआ था. ये गेम बहुत ही धीरे चल रहा था, लेकिन उसके बाद से फटाफट 2 गोल आर्सेनल ने किए, और 85th मिनट में शेफील्ड ने एक गोल पुल बैक किया, जो कि एक बहुत अच्छा गोल उन्होंने सेट प्ले से किया. लेकिन इसमें कभी ये लगा नहीं कि आर्सेनल इस गेम में हार सकता है. बट क्रेडिट टू देयर कोच, क्रेडिट टू देयर टीम मैनेजमेंट, कि जो आर्टेटा की जो आप कह रहे हो एक थ्योरी है जिसमें वो लग कर रखते हैं कि दे आर ऑलवेज इन कंट्रोल एंड दे नो हाउ टू गेट दोज रिजल्ट्स. ये इस गेम में दिखा. वेरी इम्प्रेस्ड by Arsenal performance again. Not the best game, but they did enough to win. ऐसे गेम पहले वो ड्रॉ करते. और रजत, लंदन की ही अगर बात करें तो आपने चेल्सी क्रिस्टल पैलेस का गेम देखा. उस गेम में आपको क्या लगा कि चेल्सी ने एकदम से इतना शानदार 4-0 का प्रदर्शन कैसे किया? Thanks Harsh, thanks for bringing me in for this bit. हाँ, मैंने वो मैच देखा हर्ष, और I think one thing I need to mention specifically in this match is the changes that Frank Lampard made at the back. तो उन्होंने एस्पिलिकेटा को रीस जेम्स की तरह दोबारा स्टार्ट करवाया. थियागो सिल्वा के साथ कर्ट ज़ुमा पीछे खेल रहे थे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो उस दिन के उनके प्लेयर थे वो थे बेन चिलवेल. आई थिंक ही इज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स. हमने बहुत डिस्कस किया है चेल्सी की साइनिंग्स के बारे में, काई हैवर्ट्स, टीमो वर्नर, लेकिन कभी भी अभी तक बेन चिलवेल का नाम नहीं लिया. लेकिन अगर आप देखिए तो बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड प्लेयर हैं, लेकिन जो इनका इस मैच में परफॉर्मेंस था, आई थिंक ही वाज द डिफरेंस बिटवीन चेल्सी ड्रॉइंग 0-0 ऑन दैट डे एंड विनिंग 4-0. रॉय हॉडसन ने अपनी टीम को हमेशा की तरह लो ब्लॉक सेटअप में स्टार्ट करवाया था. अगेन क्रिस्टल पैलेस जस्ट हैड ओनली 29% ऑफ पोजेशन. अगर उन्होंने लगता है कि यूनाइटेड के साथ ऐसा खेल के या किसी और क्लब के साथ ऐसा खेल के वो हर बारी मैच को निकाल पाएंगे लिमिटेड चांसेस के साथ, तो दैट डज नॉट हैपन एवरी टाइम. सो चेल्सी ने उस बात को बिल्कुल एक्सप्लॉइट किया. इफ यू सी, चेल्सी हैज डन मोर देन 700 पासेस कंपेयर्ड टू 280 पासेस गिवन ओनली बाय क्रिस्टल पैलेस. तो मतलब बॉल जब चेल्सी लेकर चल रहा है, तो आई थिंक जब आपके पास बॉल ही नहीं होगा तो आप कहाँ से क्रिएट करेंगे. तो आई थिंक चेल्सी इज डन वेरी वेल देयर. एरियल डुअल्स में आप देखें, कर्ट ज़ुमा के होने की वजह से जो भी हेडर का थ्रेट बनता है, वहाँ पे क्रिस्टल पैलेस के डिफेंडर्स उनके आसपास नजर ही नहीं आ रहे थे. क्योंकि आई थिंक वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज जो नए रूल्स आए हैं कि आपका एक्सीडेंटल हैंडबॉल भी अगर अनइंटेंशनली भी पेनल्टी एरिया में अगर आपको डी में लग जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी का दिया जा रहा है. और ये सारी चीज़ें अब रेफरी के ऊपर नहीं छोड़ी जाती हैं, ये सब वार से चेक होती हैं और टेक्नोलॉजी से तो कुछ छुपता नहीं है. तो आई थिंक इस वजह से एरियल डुअल्स में आप देखेंगे डिफेंडर्स हमेशा आपको अब थोड़े से ना सर्कमस्पेक्ट दिखाई देंगे कि उनके किसी ऐसे एरिया में बॉल टच ना हो जाए जहाँ से पेनल्टी हो जाए. तो इसमें जो भी हाई
आपके जो अच्छी हाइट वाले प्लेयर्स हैं जो फॉरवर्ड लाइन में खेलते हैं या डिफेंस में से आते हैं कॉर्नर के टाइम पे आगे, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाने वाले हैं। उसके अलावा जॉर्गिनियो के बारे में कहना चाहूँगा, उनके पेनल्टी स्पेशलिस्ट हैं, उनका अपना पेनल्टी लेने का स्टाइल है जो आपने देखा होगा ब्रूनो फर्नांडिस से काफ़ी मिलता जुलता है। हॉप स्किप एंड जंप स्टाइल से पेनल्टी लेते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है स्ट्राइकर को कि टिल द टाइम ही इज़ इन दैट मोशन ही इज़ एबल टू सी कि गोलकीपर किस तरफ मूव कर रहा है। तो the hit rate and the success rate of such penalty takers is becoming very high। और अब गोलकीपर भी अंडर प्रेशर है, अपनी लाइन को नहीं छोड़ सकता है, सब कुछ बाहर से चेक हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट फ्रॉम द प्रीमियर लीग एंड फुटबॉल एज सच कि गेम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और ज़्यादा गोल स्कोर हों। इस वजह से भी मुझे लगता है कि ज़्यादा गोल स्कोर हो रहे हैं, क्योंकि डिफेंडर्स के ऊपर स्क्रूटनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जो पहले आप देखते थे कॉर्नर्स के टाइम पे, फ्री किक के टाइम पे काफ़ी पुशिंग होता था, शर्ट पुलिंग होता था। अब इन सब चीज़ों के फाउल जो हैं वो कॉमनली दिखाई दे जाते हैं वार के अंदर, अभी आप अपील करें तो इस वजह से स्ट्राइकर्स को और अटैकर्स को काफ़ी जगह मिल रही है। एक इंसिडेंट और था मैं मेंशन करना चाहूँगा, टैमी अब्राहम वाला जो इंसिडेंट था। देखिए उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, असिस्ट भी किया था गोल्स के लिए, तो उन्हें लगता था कि जो लास्ट पेनल्टी हुआ था उनका हक बनता उस पेनल्टी को लेने का। लेकिन जैसे मैंने मेंशन किया, एस्पिलिक्वेटा को खिलाया एज अ लीडर रोल में, उन्होंने आके उन्हें समझाया कि नहीं, वी हैव डेफिनेट रोल्स ऑन द पिच और पेनल्टी एक्सपर्ट हमारे जॉर्गिनियो हैं तो वही पेनल्टी लेंगे। मैच के बाद फ्रैंक लैम्पार्ड ने बोला कि द इंसिडेंट हैज़ बीन डेल्ट विद, इट हैज़ बीन पुट अंडर द कवर्स, ये बात अब दोबारा से नहीं होगी। तो चेल्सी ऑल इन ऑल आई थिंक इज नाउ लुकिंग अ सेटल्ड यूनिट एंड they are looking very much more threatening with the addition of Ben Chilwell. Right, I actually when I saw that incident involving Abraham, तो मुझे ऐसा लगा वो एक स्कूल के बच्चे जैसा होते हैं ना कि ये तो मेरा है क्योंकि मैं गिरा तो मुझे मिलना चाहिए पेनल्टी लेने का। But as you rightly said, Jorginho batting that miss against Liverpool has a 100% track record. Just if you remove that one miss against Liverpool. So along with that, we had a few more games. Regulation home victories for Wolves against Fulham. Very flat game. I saw that game where I could not see Jimenez getting involved a lot. Pedro Neto का brilliance था, एक गोल जो उन्होंने किया. Podence was not as effective, not as potent as we expected the front three to be little more involved. वो लगा नहीं मुझे. Adama Traore को बहुत लेट लेकर आए हैं, तो वहाँ पे मतलब ये जो होता है ना, जो उनका पुश, जो उनका प्रेसिंग गेम है वो देखने को नहीं मिला. Southampton finally seems to be having a streak of good games, and they had a very comprehensive victory, I would rather say, against West Brom, a 2-0 victory. Surprisingly for FPL fans, Kings इनमें से एक भी गोल में शरीक नहीं थे, ना ही स्कोरर ना असिस्ट. और एक और हमारा एक रेगुलेशन गेम जो कि एक होम विक्ट्री रही थी, वो है न्यूकासल वर्सेस Burnley, which Newcastle won 3-1. जिसमें I think the star of the game, although people may say was their striker Wilson, but I would rather say the star of the game was Saint Maximin. उनके आने से जो न्यूकासल की टीम को जिस तरह का एक स्पार्क मिला है with the team plays in a very straightforward way. But Maximin is not a straightforward player. या तो वो हिट होते हैं या मिस होते हैं. इस गेम में वो बहुत हिट हुए हैं. जिस तरह का उनका पहला गोल उन्होंने लिया, जैसे उन्होंने असिस्ट किया विल्सन के लिए, I think he was the difference between the Newcastle this week and the Newcastle away to Tottenham and at home to Aston Villa. So overall, nobody would have predicted Everton, Aston Villa, Leicester and Arsenal as 1, 2, 3, 4 after 4 games. Harsh, surprises all around. See, Vaibhav, I would again say, I think this Premier League would start settling in next couple of weeks. And इसमें एक और स्टार्ट है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए. रजत के लिए मैं बता दूं कि आई थिंक ये 4th टाइम है जब यूनाइटेड ने 6 गोल कंसीड किए हैं, और सारे के सारे अक्टूबर में किए हैं. तो कहीं ये अक्टूबर में अभी कुछ और मैचेस भी हैं, तो शायद मतलब थोड़ा ध्यान रखिए यूनाइटेड. अदरवाइज बिकॉज अभी बहुत शुरुआत है, नवंबर तक ये टेबल सेटल होना शुरू हो जाएगा मेरे हिसाब से, जब प्लेयर्स थोड़ा सा और जेल करेंगे, जब वो अपनी फिटनेस और रिगेन करेंगे. क्योंकि प्री सीजन तो हुआ ही नहीं है ना अभी भी. आधे प्लेयर्स अगर आप देखो, दे आर एक्चुअली प्लेइंग इन दैट प्री सीजन मोड ओनली. So people have not even got a chance, and in fact this time also when you have that international break, the managers would have just couple of days to work with them before the next week starts. So you understand that it is not easy to be a manager right now. वैभव, मैं कहना चाहूँगा जब आप दुखी होते हैं ना, तो आप दूसरे के दुख को देख के कभी कभी सुखी हो जाते हैं. तो वैसा ही अभी यूनाइटेड फैंस के लिए है.
6 गोल खाने के बाद जो दर्द था वो थोड़ा सा कम हो गया लिवरपूल को 7 गोल खाते हुए देख। तो आई थिंक ये जैसे अर्श ने कहा, इट्स वेरी अर्ली इन द सीजन टू से कि टॉप 4 कैसा रहेगा। एंड आई थिंक स्टिल द टीम्स आर इन दैट प्रिपेयर्डनेस स्टेज कि वो अभी तैयार हो रहे हैं सीज़न के लिए, बिकॉज किसी को प्री सीजन टाइप्स कुछ मिला नहीं है। फाइनली आई वुड लाइक टू से कि जो हमारे प्रेडिक्शंस थे लास्ट वीक के, उसका जो हम आपको है लीडर बोर्ड वो अभी लास्ट में दिखाएंगे कि किसके प्रेडिक्शंस ठीक रहे, किसके प्रेडिक्शंस गलत रहे, और अभी तक 4 गेम वीक्स में हम तीनों में से कौन लीड कर रहा है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आपको हम लास्ट में इस वीडियो के ज़रूर दिखाएंगे। रजत, मुझे ऐसा लगता है कि लीडर बोर्ड में शायद सरप्राइजेस देखने को ना मिले इस बार, क्योंकि अर्श वाज गोइंग अ लिटिल टू बोल्ड ऑन द रिजल्ट। आई वाज स्लाइटली मोर सेफ, सो लेट्स सी हु एट द एंड ऑफ गेम 4 इज लीडिंग द वे। बट यस, थैंक यू व्यूअर्स एंड थैंक्स एवरीवन। ये हमारे एक इंटरैक्टिव चैट शो को जिसमें प्रीमियर लीग का डिसेक्शन करते हैं, आप उसे देखते रहें। हम इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। That is the only way we will sort of feel motivated to bring more content for you guys. And Arsh और रजत और मेरी ओर से शुक्रिया, thank you for watching this video and see you soon. Bye. Thank you. Bye. Thanks. Thank you, Rajat. Bye.